Well, in the current scenario, I have observed that there are so many people who are absolutely desperate about their investments. They have the questions that what kind of investment options are available with us. At the same time, they want the investments to be very safe and secure. I've learned in financial management that if you take the higher risk, you get the higher returns. But you need to have the good risk appetite if you want to get the better returns. I've observed people coming to the share market saying that the share market is one of the better opportunity. You make the money double overnight. At the same time, I've heard from a person saying, how can you be a millionaire by investing in the share market? And the other one simply replied, you invest 2 million and after some period you have 1 million. So you become a millionaire when you are having the investment in the share market. So it depends on the perspective. Someone says share market is one of the fantastic area. Someone says share market is the most pathetic area. I'll tell you very frankly, my dear friends, share market investment is a 100% riskier investment. The investment in the share market cannot be done only on the basis of certain tips and tricks. When you want to make the investment in the share market, you need to be very much sure. You need to do the long-term investments. You need to have the thorough knowledge, or you need to have at least the knowledge about the company in which you are making the investments. And your investments should be more on the basis of the fundamental analysis as compared to the equity analysis of the different shares, sorry, as compared to the technical analysis of the different shares. They say trading is good. Yes, of course, trading in shares is good if you are involved into it day in and day out. You should be a thorough trader in that case. जैसे आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए सुबह उठ के तैयार होते हो, अपने ऑफिस के लिए रेडी होते हो, आपने अपने ऑफिस में जाते हो, आपको दिए गए रूल्स रेगुलेशन सिस्टम के हिसाब से आप काम करते हो, शाम को समय खत्म होने के पहले घर नहीं आते हो, इनफैक्ट एक्स्ट्रा टाइम लगा के एक्स्ट्रा वर्क करते हो, उसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इसी लेवल का इंटरेस्ट चाहिए होता है इफ यू वांट टू बिकम द ट्रेडर. But to a layman, it is never suggested that you should trade in the shares. What happens, I'll tell you. You're standing in the group of 4, 5, 10. हम लोग जनरली हमारे देश में कहते रहते हैं वो चार लोग, एंड दैट्स व्हाई हम लोग चार लोगों की ही बातें हमेशा करते हैं. तो ये जो चार लोग होते हैं आपस में खड़े होते हैं, उसमें से दो लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में, और बंदा बात करना चालू करता है, और ये कल रिलायंस देखा, और वो चार में से एक बंदा ऐसा होता है जिसने अब तक के इन्वेस्ट नहीं किया होता है, वो अचानक से सुनता है तो वो बोलता है यार ये तो बड़ा एक्साइटिंग काम लग रहा है, इसमें अगर पैसा लगाओ तो दो दो महीने में पैसा डबल. That kind of thing is what people start thinking, and that's not correct. You cannot expect overnight double returns. If anyone is promising you something like this, he's faking it. If anyone is promising you that you get 20, 24%, 25% per month return, मतलब 300% का रिटर्न की बात करें, this is not possible. By fluke once in a while possible है, पर आपके रिस्क पे डिपेंड करता है. So that's why I keep on suggesting that you should never do the trading in the share market. In fact, you should be doing the long-term investments in the share market if your focus is long-term. If you have selected the good companies, if you have selected the organizations which are having the strong fundamentals in the share market, then your money is safe and secure. But at the same time,
Do not expect that your investments will give you the returns in the range of 50 or 60%. हो भी सकता है, but that's not possible every time. On an average, what I've observed is that investments in the share market give you the return on an average of 20 to 25% tax free. पर अगर आपका horizon long term हो तो, otherwise नहीं. All right. So what is this trading? Within that, what is this short trading? What is the intraday trading? Let's first talk about this, and then I'll go into the next part of my discussion, that is with reference to the fundamental analysis of the companies. Now, trading means you are buying something with an intention of selling it immediately. You don't want to hold it. You don't want to keep it with yourself. You want to just get it and sell it. That is what you call as the trading. You buy and you sell, you buy and you sell, you sell and you buy, you sell, you buy. This is what we call as the trading. This trading can be on weekly basis. This trading can be on daily basis. If you are doing the trading on daily basis, it is called as intraday trading. आप शेयर मार्केट खुलते सही परचेसिंग करते हो या सेलिंग करते हो, और इंटेंशन यही होता है कि आज के आज इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देना है, स्क्वायर ऑफ कर देना है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज द इंट्राडे ट्रेडिंग. मान लो सुबह के टाइम जोन में मैंने 100 रिलायंस के शेयर खरीद लिए एट द रेट ऑफ 2100 विद एन इंटेंशन कि ये 20 रुपए ऊपर हो गया, मैं उड़ा देगा. क्यों? 100 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 2000 रुपया बनता है, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 शेयर पे 2100 रुपए के हिसाब से 2,10,000. पर मैंने 2,10,000 नहीं दिए, मैंने उस 2,10,000 का एक पर्टिकुलर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन दिया. Because whenever you do the intraday trading, in that case, normally you have to do the margin funding. You are not supposed to pay the full amount. And on top of that, अगर आपने purchase कर भी लिया, तो normally as per the SEBI guidelines, you get T+2, that is 3 days for payment. तो आज जो आपने खरीदी की, उसके आपको 3 दिन में पेमेंट करने होते हैं. हालांकि the companies under the risk management system RMS, जो भी आपके ब्रोकर्स होते हैं, वो अपने आरएमएस में ये प्लान करके रखते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर विदाउट पैसा लगाए, कुछ मार्जिन दे के, पार्ट ऑफ द अमाउंट दिए बगैर कोई भी ट्रेड नहीं लेगा. तो आप ट्रेड ले सकते हो बाय गिविंग ओनली से 25%. डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर टू ब्रोकर कि आपको कितना मार्जिन फंडिंग देना पड़ेगा. तो अगर आपको रिलायंस के 2,10,000 के रुपए के शेयर्स खरीदने के लिए 50,000 रुपए का फंडिंग दे के आपने वो 50,000 के शेयर, उसी दिन रिलायंस का शेयर 20 रुपए से बढ़ गया और आपने उसी दिन उस 20 रुपए में 20 रुपए बढ़ के शेयर्स को बेच दिया, देन इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज द इंट्राडे प्रॉफिट. आपका इन्वेस्टमेंट कितना था भाई साहब? 50,000 रुपए. आपने रिटर्न कितना कमाया? 2,000 रुपए. If I do the simple calculation here, 2,000 divided by 50,000 %, 4%. मान लो आप इसी तरह से हर दिन प्रॉफिट कमा रहे हो, तो महीने में 25 दिन शेयर मार्केट काम करता है. तो 2,000 इंटू 25, 50,000 रुपए कमाया आपने. मतलब 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे मंथली 50,000 रुपए का रिटर्न, एक महीने में पैसा डबल. एक महीने में पैसा डबल. ये बात होती है लोगों की. That means you are getting 1,200% return on an annualized basis. मामू बनाने वाले काम है, ऐसा नहीं होता है. रोज आपके खरीदने के बाद रिलायंस का शेयर 20 रुपए से ऊपर नहीं जाता है, या जो कोई भी शेयर आपने खरीदा होगा वो उतने रुपए से ऊपर जाएगा, वो रोज नहीं जाता है. This is based on the technical analysis, based on the fundamental analysis, but इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा अगर प्रॉफिट होता तो मनीष तरडेजा आपके सामने बैठ के स्क्रीन के सामने बात नहीं करता.
मनीष तरडेजा ने 5-1 लाख रुपए लगा के हर महीने 5 लाख रुपए कमाया होता, 60 लाख रुपए साल का, व्हाई टू वरी? मोदी जी को भी 30% दे दिया होता, 18 लाख रुपए, मनीष तरडेजा 42 लाख रुपए बिना कुछ काम किए खुश है, isn't it? That's not possible. ये रियलिटी नहीं है, ये फेक है, ये सिर्फ मामू बनाने का तरीका है, and you should not get into it. Are you getting my point? You should not get into it. Intraday trading is a big hasanok, right? Well, there are so many things of that kind that I can talk about. Then, so I hope you have understood what is intraday trading. Then there is something called as short trading. Short trading means what? You don't own any shares. आपके पास किसी भी शेयर, किसी भी कंपनी के कोई भी शेयर्स नहीं है. आप शेयर मार्केट में जाते हो, आपको लगता है कि आज मार्केट टूटने वाला है, और क्योंकि मार्केट टूटने वाला है मतलब शेयर प्राइसेस नीचे आएंगे, बिकॉज यू आर निफ्टी, your Sensex, the value of Sensex, the value of Nifty is nothing but the weighted average of the different, shares, those are listed in that index. That is what we call as the value of Nifty or Sensex. Okay. So, what is this short trading? Let's talk about that. The short trading is basically when you are not owning any shares of anything, any company. You are having the thinking, you are having the information, you are having the understanding, you are having the analysis कि आज मार्केट टूटने वाला है, और इस वजह से तुम एक किसी कंपनी के शेयर्स, तुमको जिस कंपनी का लगता है कि ये शेयर का प्राइस कम होगा, जैसे मैं रिलायंस के बारे में सोच रहा था कि वो 2000 का शेयर 2100 का शेयर 2120 जाएगा, उसी तरह से मुझे लगता है कि आज रिलायंस टूटेगा मतलब रिलायंस का प्राइस कम होगा, तो मैं 2100 में शेयर खरीदने की बजाय 2100 में 100 रिलायंस के शेयर्स बेच देता हूं. दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट trading, short selling. Short selling means what? Without having the quantity in your portfolio, without having the share in your portfolio, you are selling it off. That is why it is called as short selling. So when you short sell the shares, आपका इंटेंशन क्या है कि अब वो 2100 का शेयर 2050 पे आएगा. जब वो 2050 पे आएगा, आप उसको परचेज कर लोगे. पहले आपने बेचा फिर खरीदा. दिस इज अलाउड इन द शेयर मार्केट. दिस इज लीगल, एब्सोल्युटली लीगल, बिकॉज आपका एनालिसिस है, आपको लगता है कि ये शेयर का प्राइस कम होगा, तो यू कैन शॉर्ट सेल इफ योर ब्रोकर इज अलाउइंग टू डू दैट. However, this short selling is only permitted as per the broker's rules. ब्रोकर अगर आपको मार्जिन फंडिंग के अगेंस्ट ही शॉर्ट सेल करने दे, ब्रोकर का इंटरेस्ट क्या है कि आपने 2100 में बेचा, सपोज वो 2100 का शेयर 2150 हो गया, आपका इंटेंशन था, आपको लगता था कि वो 2050 हो जाएगा, तो आपको ब्रोकर 2150 पे लेने को मजबूर करेगा, और 50 रुपया इंटू 100 शेयर 5000 रुपए का तुम्हारा नुकसान होएगा, वेयर एज यू वर इंटेंडिंग टू अर्न द प्रॉफिट. So that's how that intraday makes the losses also for you, right? So without having the quantity with you, without having the buying, without buying the shares, you can still sell those. That is called as short sell. Am I right? अब आगे की बातें बताता हूं. What is future? What is option? Within option, what is call? What is put? Future means what? You are not trading. You are not trading in current date. आप
शेयर एक्सचेंज के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो. दैट कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? That after a particular point, after a given period of time, which is generally called as the expiry date, up to that date, you are ready to buy a particular share at a particular price. तो आप आज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो. आज सपोज रिलायंस का शेयर का प्राइस चल रहा है 2100 रुपए. आपको लगता है रिलायंस का शेयर बढ़ेगा, तो आप क्या बोलते हो कि मैं आज रिलायंस के 2100 रुपए के शेयर खरीदने के लिए रेडी हूं विथ एन इंटेंशन दैट दिस पर्टिकुलर प्राइस विल गो अप. आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए. अब आप जब कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने पहले भी कहा था, प्लीज डू नॉट पुट द क्वेश्चंस, यू राइट द क्वेश्चंस विथ योरसेल्फ, दोस डिस्ट्रैक्ट मी. लेट मी फिनिश माय डिस्कशन, then you ask the questions, right? हाँ, तो आप ब्रोकर के थ्रू एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए कि मैं 2100 में रिलायंस के पर्टिकुलर नंबर, जब हम फ्यूचर में डील करते हैं तो हमको एक या दो शेयर लेना अलाउड नहीं है. देयर आर द फिक्स्ड लॉट्स इन विच वी हैव टू बाय और सेल द शेयर्स. जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं तो हम लोग हमारे हिसाब से क्वांटिटी तय नहीं कर सकते हैं. द क्वांटिटी इज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज. whatever is the quantity decided by the exchange is called as a lot. तो जब भी मैं किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं तो मुझे एक पर्टिकुलर लॉट ऑफ क्वांटिटी बाय या सेल करना होता है कंपल्सरी. तो मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया सेइंग व्हाट, दैट आई वांट टू परचेज 500 रिलायंस शेयर्स एट ₹2215 ऑन द गिवन डेट. ठीक है, अब मेरे पास बाय कॉन्ट्रैक्ट हो गया. कौन सी तारीख का? मान लो अब हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो 25 अक्टूबर इज द लास्ट डेट. Last Thursday of every month is considered as the expiry date for the contracts. जो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले होते हैं उसका, उस मंथ का लास्ट थर्सडे इज कंसीडर्ड एज द एक्सपायरी डेट. तो हम लोग जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो लास्ट थर्सडे तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है व्हेन इट कम्स टू द इक्विटी. और अगर वो इंडेक्स का होता है तो वो वीकली बेसिस पे होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं. अब जब मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, इसका अंडरलाइन क्या है? तो शेयर्स ऑफ द कंपनी. अंडरलाइन असेट वी कॉल एज द शेयर्स ऑफ द कंपनी. क्योंकि जिस पर्टिकुलर शेयर में और जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो उसका कोई अंडरलाइन असेट होना चाहिए जिसके बेसिस पे उसका प्राइस डिसाइड होगा. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड होने के लिए कुछ ना कुछ बेंचमार्क तो होना चाहिए ना. दैट बेंचमार्क इज व्हाट वी कॉल एज द अंडरलाइंग असेट. अगर मैं रिलायंस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं तो रिलायंस के शेयर का प्राइस इज कंसीडर्ड एज द अंडरलाइंग असेट. एम आई राइट? नाउ व्हेन आई एंटर इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदा? बाय करने का. कितने प्राइस में? 2150 में. राइट. अब मान लो शेयर का प्राइस बढ़ने लगा और वो शेयर का प्राइस हो गया 2200 रुपए. मैं वापस एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं saying what, I want to sell 500 Reliance shares at the rate of 2200. अब जब भी हम कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं, या आपने बाय कॉन्ट्रैक्ट खरीदा या आपने सेल कॉन्ट्रैक्ट लिया, इन दोनों के केस में आपको एक मार्जिन फंडिंग करनी होती है. आपको कुछ पैसा देना होता है जिसके बेसिस पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो. Who decides this margin? Securities and Exchange Board of India. You and me do not decide along with the negotiation with the broker. It is decided by the Securities and Exchange. उतना मार्जिन हमको देना होता है ताकि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद पाए या उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच पाए. तो अब जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ था पहले 2150 में, बाद में वो शेयर प्राइस बढ़ गया तो मैंने 2200 में बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया. इधर बाय कॉन्ट्रैक्ट है, इधर सेल कॉन्ट्रैक्ट है. तो बाय इज गेटिंग सेट ऑफ विद द सेल कॉन्ट्रैक्ट. दैट्स हाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कंप्लीटेड. बोथ
contracts cancel each other, that's why it is called as square off. और ये square off में क्या हुआ, मैंने 2150 में खरीदा था फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, 2200 का सेल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो 50 रुपए का डिफरेंस हो गया है नहीं. This 50 rupees will be treated as my profit per share into how many shares were there, 500. तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000 रुपए. अगेन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स technically should be used only for hedging purpose. Hedging means what? Covering the risk against the loss is called as hedging. Hedging कैसे होती है, क्या होती है? I said covering the risk against the loss is called as hedging. You should hedge your risk is how the term is used. Now, hedging means सपोज मेरे पास ऑलरेडी 500 शेयर, ये टेक्निकली ऐसा होना चाहिए, बट हमारे देश में 90% ऑफ द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस आर डन ऑन गैम्बलिंग. ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है. 90% जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 10% कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड फॉर हेजिंग पर्पस. होना रिवर्स चाहिए, पर कहानी है हर जगह की, तो अपने अपने हिसाब से चलेगी, राइट? तो हेजिंग कैसे होती है और क्या होती है? मान लो मेरे पास रिलायंस के 500 शेयर्स ऑलरेडी हैं, ऑलराइट. अब मैं नहीं चाहता हूं कि ये रिलायंस के जो मेरे पास शेयर्स हैं इसके अगेंस्ट मुझे किसी भी तरह का लॉस हो, और मैं ये रिलायंस के शेयर्स बेचना भी नहीं चाहता. लॉस भी नहीं होना चाहिए और मुझे प्रॉफिट भी मिलते रहना चाहिए. कैसे होगा? आज मैंने जब रिलायंस के शेयर खरीदे, मेरे पास सपोज मैंने 100 रिलायंस के शेयर्स खरीद के रखे हुए, पहले मैंने खरीदे थे जब वो 950 था, अब 2100 हो गया. अब मुझे मेरे लॉस, मेरे प्रॉफिट में नुकसान नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2100 वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता हूं. तो इससे क्या होगा कि अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो मैं एक सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा और उससे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे 100 के 100 शेयर ऐसे कैसे रह गए. या फिर मुझे लगता है कि इसके प्राइसेस अब कम होने वाले हैं, तो मेरे कैश मार्केट में जो मेरे पास 100 शेयर्स है उसकी भी तो प्राइस जो शेयर्स मेरे पास हैं उसकी भी तो प्राइस कम होती रहेगी या नहीं. तो उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले सेल कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं, और बाद में जब उसका प्राइस एक्चुअली कम हो जाता है मैं बाय कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता हूं. क्यों? अब हुआ क्या, अब सपोज रिलायंस के शेयर का प्राइस कम नहीं हुआ, तो मेरे पास कैश मार्केट में तो थे जहां पे प्राइस बढ़ते जा रहा था, तो वहां मेरे पास प्रॉफिट हो रहा था. पर मान लो अगर नुकसान हो रहा है तो मेरे कैश मार्केट वाले प्राइसेस का भी तो कम हो रहा है, कैश वाला प्राइस भी कम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरे पास सेल का कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने बाय का कॉन्ट्रैक्ट बाद में खरीद लिया, तो डिफरेंस मेरा ऑटोमेटिकली लॉस का सेट ऑफ हो जाएगा या नहीं. दैट्स हाउ द हेजिंग इज डन. कवरिंग द रिस्क इज कॉल्ड एज हेजिंग. सो future market should technically be used only for hedging purpose. However, in our country it is used, or in many of the countries it is used for gambling purpose. सटोरिये यूज करते हैं इसको, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते हैं, which is not correct, नहीं होना चाहिए, but people do use it. Further to that, there is something called as options trading. फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है. कैसे? मान लो मैंने 2100 रुपए का रिलायंस शेयर खरीद दिया, 500 शेयर्स, और अगर वो रिलायंस का शेयर 200 रुपए से टूट गया, मेरा एक्सपेक्टेशन था 50 रुपए बढ़ेगा मैं बेच देगा, बट वो अगर 200 रुपए से टूट गया, मैं फिर भी नहीं बेच रहा हूं, तो मेरा 200 रुपए इंटू 500 शेयर 1 लाख रुपए का नुकसान. देयर इज नो लिमिट ऑफ लॉस, इवन दो देयर इज नो लिमिट टू द प्रॉफिट्स आल्सो. फ्यूचर मार्केट में प्रॉफिट अगर बहुत हो सकता है तो लॉस भी बहुत होने के चांसेस होते हैं. But if you want to have the limited profits with the restricted losses, for that you should go into the options trading. Options में हमको हर शेयर के पीछे कुछ एक प्रीमियम तय किया होता है.
which depends on the current market scenario, which depends on the fundamentals of the company, which depends upon the market scenario in the economic front, which depends upon the financials of the company. इन सब के बेसिस पे, इन सब को बेंचमार्क रखते हुए, इन सब का कंसीडरेशन करते हुए उस शेयर का एक प्रीमियम तय किया जाता है कि अगर आप इसमें तेजी करना चाहते हो, मतलब यू वांट टू गो ऑन द बाय साइड, आपको लगता है कि इसकी प्राइसेस बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज तेजी करना। और अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइसेस कम होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज मंदी में जाना, बुलिश एंड बेयरिश। If you are bullish about a particular share, you can buy a call option of that particular company. And if you are expecting that the market price will go down, you can buy a put. Buying a call means expecting the price rise, and buying a put means expecting a price fall. क्योंकि अगर आप expect, suppose अब SBI का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस बहुत हो गया, SBI आज चल रहा है 198 पे, मुझे लगता है SBI का प्राइस 210 रुपए होगा, तो मैं इस मंथ की एक्सपायरी का 210 रुपए का रिलायंस शेयर का, सॉरी, SBI का कॉल खरीदता हूं। उस कॉल को खरीदने के लिए मुझे उसका सिर्फ मार्जिन कितना देना होता है, प्रीमियम अमाउंट। तो प्रीमियम है सपोज 3 रुपए, SBI का लॉट है मान लो 1500 शेयर्स, तो 1500 शेयर्स इंटू 3 रुपया, मुझे 4500 रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर ये प्राइस सच में 210 की तरफ चलने लग गया, तो वो 3 रुपए का जो प्रीमियम है वो बढ़ता जाएगा, एंड इट विल गो अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर वो 210 क्रॉस कर गया, तो दैट प्राइस विल कीप राइजिंग फर्दर, एंड आई कैन सेल एट द हायर प्राइस। अब समझो डिफरेंस, समझो, 3 का 30 नहीं होगा, 3 का मैक्सिमम 5 रुपए होगा जब प्रीमियम की बात करते हैं हम लोग। पर जब फ्यूचर्स में था, सपोज मैंने 198 का फ्यूचर खरीदा हुआ है और 210 का फ्यूचर सेल किया, तो मुझे 12 रुपए इंटू 1500 शेयर, मतलब 18,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पर जब मैं कॉल ऑप्शन में गया, तो 3 रुपए का कॉल मैक्सिमम 5 या 6 रुपए तक जाएगा, 3 का 6 हुआ, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट इंटू 1500 शेयर, 4500 रुपए। सो दैट्स द रेस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट विद द रेस्ट्रिक्टेड लॉस। कल को अगर वो शेयर प्राइस नहीं बढ़ा, सपोज 198 का आज का SBI है, वो डायरेक्ट 185 पे चला गया, तो फ्यूचर्स में मेरा नुकसान कितना हो सकता है, 13 रुपया इंटू 1500 शेयर, दैट इज 19,500 रुपए। पर ऑप्शंस में मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, 4,500 रुपए। So option trading is basically for the people who want to take lesser risk with the lesser returns, limited risk with the limited returns. However, as I said earlier also, the futures and options should be traded only for the hedging purpose, even though in the practical scenario the things are quite different. Right? ये सारी चीजें मैंने एब्सोल्यूट ज्ञान के लिए बताई, इसका आप कोई भी उपयोग नहीं कर सकते हो एट दिस पॉइंट इन टाइम, उपयोग करना भी नहीं, करना चाहिए भी नहीं। You can utilize this at a later date, maybe when you are growing, when you are earning money of your own, at that time you can do your own investments. Now I'll come to the cash market investments. I hope I'm going good for everyone today. This is going fine. आज थोड़ा सा बाउंसर कम है. Can you raise hands for me? Yes, thank you. हाँ, आज समझ आ रहा है. चलो. Now, when I am making the investment in the share market investment is again a riskier investment. Mind well, my dear friends. I am surely contradicting with the opinion of some senior faculty. But at the same time, I'm a chartered accountant, still young by age as well as heart as compared to them. So I will still promote, I will still suggest that one should make the investment into the equity markets, even though it has got the risk, but it surely gives the returns also. मैं जब ये कंप्लीट कर लूंगा ना डिस्कशन, उस समय पे आपको एक बढ़िया वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगा, by which I am dead sure, 100% sure
that you will never make the losses. मैं खुद फॉलो कर रहा हूं and I'm making profits out of that. God's grace नहीं कहूंगा, with the proper discipline, right? संयम के साथ हर चीज सही होती है. Okay. अति घाई संकटात नहीं is what they say. So let's talk about if you are doing the investment into the share market. I am talking about the cash segment. I'm not talking about the future segment now. Cash segment means what? Cash segment means what? You are making the investment into the actual shares of the company. You are buying the shares of a company with an intention to resell the same. As I've said earlier also, even if you are dealing into the cash market, you should be dealing on a long-term basis. You should not be having the intention of making overnight money. All right. Now, there are two fundamental understandings or two different ways in which you can analyze on what basis you should be making the investment. One of them is called as the fundamental analysis, and second is called as the technical analysis. I'll first focus on the technical analysis. Suppose, in fact, technical analysis is should always be subordinate to your fundamental analysis. However, people have started believing 100% in the technical analysis over even the fundamental analysis. Cash market is the market in which you buy and sell the shares of the company and not the future contracts or the option contracts. That's what we call as the cash market. तो जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हो तो इसमें कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता है. The technical analysis is purely based on the price and volume movement of a particular share. ये नहीं होना चाहिए. I said your technical analysis should be subordinate to your fundamental analysis, but people don't believe in that. आप अगर वो बिजनेस चैनल जो चलते हैं ना, जो आपको न्यूज बेचते हैं in the form of CNBC आवाज, CNBC टीवी, CNBC आवाज वाले तो इतने एग्रेसिव बंदे हैं, वो आपके सामने इतना कॉन्फिडेंस, अभी आप शेयर ये खरीद लो, 180 रुपए वाला शेयर अभी खरीद लो, ये 192 तक के जाएगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 175. अरे भाई कहां से डिसाइड किया आपने? अभी खरीद लो. बंदे सच में खरीदते भी हैं. और होता क्या है, 180 में आपने खरीदा, वो 185 187 जाता है, हम लोग कहते हैं नहीं 192 तक जाना चाहिए, तब तक क्या उसको छोड़ते नहीं है. हालांकि 187 में छोड़ के निकल जाना चाहिए, 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उठाओ खत्म करो. पीपल डोंट डू इट. पीपल सीरियसली डोंट डू इट. फिर क्या होता है, वो जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ना, वो क्या सोचता है, 180 का 192 होगा, 192 होगा कि बेच दूंगा. अब वो 180 वाला शेयर 187 तक जाता है, कबड्डी 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 करते हुए वो बाउंड्री लाइन पार नहीं कर पाता और वापस आ जाता है और इमीडिएटली 172. हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, 192, कहां चला गया 172. बंदा क्या सोचता है, कोई नहीं कल आ जाएगा 192, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. कल को वो एनालिस्ट वो चैनल पे नहीं आता है. क्यों? कल वाला दिन जो उसने कॉल दिया था, कल वाला दिन जो उसने टिप दिया था, नॉर्मली टिप हम लोग सिर्फ वेटर को देते हैं, बट हम लोग कहीं से भी ले लेते हैं. तो कल वाला जो टिप देने वाला बंदा था वो तो चला गया. उसने कहा था 175, तुम तो होल्ड करके बैठे, नहीं 172 आ गया, 192 आएगा. बंदे ने कहा था, अरे उसने 175 भी कहा था, हमको याद नहीं होता है. एंड देन वो 172 पे हम लोग टिक के बैठे, वो 172 वाला शेयर 171 173 173 172 175 171 160 घूमते घूमते नीचे नीचे नीचे. बंदा कहता है कोई नहीं अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते बेच देंगे. वो इंट्राडे ट्रेडर अचानक वीकली ट्रेडर हो जाता है. वो शेयर का प्राइस 120 रुपए है,
कहता है कोई नहीं, 190 पक्के में वापस आएगा, तब तक मैं होल्ड करेगा। वो जो वीकली ट्रेडर होता है ना, वो इन्वेस्टर बन जाता है। दिस इज हाउ द ट्रेडर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इन्वेस्टर, द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी द इन्वेस्टर फ्रॉम पॉइंट वन, डे वन। आपने प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लेके बैठ जाओ और आप लोग सांप के जैसे बैठ जाओ उसके ऊपर, मैं कभी नहीं बेचेगा, फू 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 करते रहो। दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेशन, बट द इंटरेस्ट इज व्हाट, दैट यू शुड हैव द इंटेंशन कि मैं आज ये खरीदेगा जब कभी भी इन द नेक्स्ट 6 months 8 months, क्योंकि मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूं फंडामेंटली अच्छी कंपनी। इन द नेक्स्ट 6 months 8 months इट विल गो अप बाय 10% 12%। जब वो 12% क्रॉस कर जाएगा, मैं बेच दूंगा, वापस से किसी और कंपनी में चले जाऊंगा फंडामेंटली जो गुड होगी। And like this, I work on the cyclicals of the companies, and that's what is expected. तो जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो इसमें सिर्फ दो ही चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस एंड वॉल्यूम। इसमें आप कई सारे टर्म्स सुनोगे लोगों से, डीएमए दैट इज डेली मूविंग एवरेज, डेमा कहते हैं इसे हिंदी में, डेली मूविंग एवरेज। नॉर्मली जब मुझे भूख लगती है तो मैं माँ को कहता हूं दे माँ खाना दे, पर मार्केट वाले लोग डेमा पे बहुत फोकस रखते हैं। देयर आर मल्टीपल मूविंग एवरेजेस व्हिच आर टेकन। अगर वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके आगे बढ़ना चालू हो गया, मतलब ये प्राइस ऊपर बढ़ेगा। ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर नीचे जाना चालू हुआ तो ये प्राइस नीचे जाएगा। दैट्स हाउ दे डू द एनालिसिस। उसी बेसिस पे ये लोग तय करते हैं कि इसका अगला टारगेट क्या होगा, अगला स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कहां पे इसको सपोर्ट मिलेगा, कहां पे इसको रेजिस्टेंस आएगा। ये सारी चीजें एवरेजेस के बेसिस पे डिसाइडेड होती है। There are multiple benchmarks on that. There are multiple studies done on that. There is something called as candlestick approach. There is something called as Fibonacci approach. बहुत सारे अलग अलग तरह के टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं और उस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे तय किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस किस तरफ मूव हो रहा है, whether it is growing, falling, if it is growing to what extent, if it is falling to what extent, और उस बेसिस पे ट्रेडिंग किया जाता है। But this technical analysis should be good only if it is supported by the good fundamental analysis. आप कंपनी के चरित्र के बारे में जानते हो, आप कंपनी के फेस कट पे नहीं जा रहे हो। मुझे किसी ने समझाया था what is this fundamental analysis and what is this technical analysis. अब हुआ यूं कि हमारे जो झुमरू भाई साहब हैं, वो कॉलेज में पहली बार गए। जब वो कॉलेज में पहली बार गए तो कॉलेज में घूमते फिरते, पहली बार जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो हमारी नजरें इधर उधर दौड़ती रहती हैं, सर कॉलेज की बातें मत करो सर, हम लोग बहुत पछता रहे हैं यहाँ बैठ के। नजरें इधर उधर हम दौड़ा भी नहीं सकते, दौड़ाया भी तो कोई फायदा नहीं है सर। पर ठीक है, तो झुमरू भाई साहब कॉलेज पहुंच के उन्होंने नजरें दौड़ाई। अचानक एक लड़की पे उनकी नजर गई, जिसका नाम क्या था, झुमरी। तो जैसी इनकी झुमरी पे नजर गई, इनको झुमरी के नाक नक्श पसंद आ गए, और जब वो झुमरी के और पास गए, उससे बात करना चालू किए, तो इनको लगा कि हाँ यार ये कंपनी सही है, दिस इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन हैव अ गुड कंपनी विथ हर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द टेक्निकल एनालिसिस। when you like the face cut, when you like the features of a person, when you like that person's talks, etc etc। 2-3 साल तक के ये बंदे साथ में रहे और उसके बाद में इन्होंने घर में कहा कि नहीं हमको तो साथ रहना है। फिर घर वालों ने जाके उनका डिटेल पूछना चालू किया, भाई इसके खानदान में कौन है, ये लड़की क्या करती है, इसके फ्रेंड सर्कल में कौन है, ये कहाँ रहती है, उनकी एरिया में कौन कौन से टाइप के लोग रहते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल एज द फंडामेंटल एनालिसिस। So you should never do only the technical analysis. You have to have a fundamental analysis. Now, how do we do that fundamental analysis? The details of that will be coming tomorrow. The detailed fundamental analysis of a company will meet tomorrow. Thank you for today.